the most honorable Vice Chancellor of the University, Professor Sudesh Ji, the esteemed Speaker of the day, Shri Vivek Shukla Ji, esteemed Principal of the two schools, which are unique schools, Sunita ma'am and Sarosh ma'am, my dear teacher friends and dear students. Indeed, it's a great pleasure for me to be given this opportunity to say something on this occasion. I take this pride and I feel so happy that under the dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor, EPS Mahila Vishwavidyalaya has implemented National Education Policy 2020 in letter and spirit. Not only in letter, but in spirit as well. I say in spirit because if you go back to that value-added list of courses, and if you go back to the AEC and skill enhancement courses, you will find a range of courses which will take care of competency. Competency not only in the sense of inculcating a skill, but creating a complete comprehensive human being. I think that's the gist of NEP 2020. And especially if you go back to VSC, that is value-added courses, you will find a course on ethics and also a course on Bhagat Phool Singh Ji. Every student of the university, I think, is supposed to study about Bhagat Phool Singh Ji and Subhashini Bahan Ji and their philosophy, because it was their idea which has come in the form of today's university, and I think we are a product of that great idea which they envisioned, I think, long time. Right? So I think our university under ma'am's leadership has implemented NEP in its entirety, at least in undergraduate programs. I feel so happy that our two illustrious schools on the campus, they have thought of holding this workshop for the teachers and to train them how to understand NEP in letter and spirit and how to take it to the classrooms. I think that becomes more important. Right. So when you take it to the classroom and implement through your teaching, and maybe when you train your students, I think when they pass out, they will speak about your understanding of NEP and the way you implement it in the classroom. Right. I would like to say one more thing, that I think entire NEP was conceptualized on Bloom's taxonomy. Like Bloom was a philosopher, was a linguist, was a thinker, was a psychologist. And Bloom has given a taxonomy of, I think, 6 verticals, where he talks of the general vertical, gentry vertical, we call codes kind of category, higher order thinking skills. Practically, what Bloom says, let us create thinking students, thinking citizens who can think, who can critically think, who should not only accept what is given to them, who should think, question, and then understand it. I think there lies the essence of NEP. ब्लूम ने तो बहुत बाद में कहा था, भारतीय चिंतन में तो प्रज्ञा जैसा उन्होंने सरिता जी ने उन्होंने कहा था, प्रज्ञा का जिक्र किया था। हमारे यहाँ तो प्रज्ञा का मतलब ही था कि आप जब तक चिंतन मनन और उसको कंठस्थ और उसको ग्रंथस्थ, मनस्थ कंठस्थ और ग्रंथस्थ नहीं करेंगे तो तब तक वो प्रज्ञा का रूप नहीं लेती है, प्रतिभा का रूप नहीं लेती। Right. So I think personally I'm grateful to Honorable Vice Chancellor who agreed to this idea for this workshop. In fact, who initiated into this workshop. That is a donor school, Belkis Kukkar. It's a giant step as far as NEP in the university is concerned, and this is going to benefit all of us. Thank you so much. I'm grateful to the university for giving this opportunity. हम सभी की आदरणीय विश्वविद्यालय परिवार की आन बान और शान इस बेहतरीन कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश जी के सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर
Professor Ravi Bhushan, coordinator of this NEP program at university level. Vivek Shukla, who has been one of my favorite students, now turned into an educator, and he's done a lot of, so that talks about teacher-taught relationship. Dr. Sumita, Dr. Sarosh, सभी अध्यापकगण दोनों स्कूल्स के छात्राएं हमारी, and at most the two ladies who have been conducting the session. It's been a very long time. I have such good Hindi. So हिंदी दिवस भी है, तो कई मायने में जो इवेंट है ये स्पेशल हो जाता है। और उसके अलावा मुझे अपने जो डीन है यूनिवर्सिटी की, वो स्कूल्स की फॉर्म में उनको और नज़दीकी से देखने का मौका मिल जाता है। तो जैसा कि हम जब हिंदी की बात करते हैं, आज हिंदी दिवस है, हमारे जो विश्वविद्यालय के संस्थापक थे भगत खून सिंह और 1919 में, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं पढ़ रही थी किसी पुस्तक में कि उन्होंने हिंदी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस की। तो उस मायने से भी हम उनको भी नमन करते हैं कि आज के दिन हम यहाँ इस प्रकार की वर्कशॉप करते हैं फाउंडर्स। We move on with that. So ever since we've been implementing this NEP in the university, मेरे मन में बहुत बार विचार आता था कि स्कूल से हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्कूल हमारी विश्वविद्यालय की नींव है। जब नींव स्ट्रॉन्ग होती है तो विश्वविद्यालय अपने आप ही गति प्राप्त कर लेता है। और इस वर्कशॉप के माध्यम से जिस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने किया, मुझे बिल्कुल दिल से बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि हमारी नींव बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की और ज़रूरत है, वो हम करेंगे। इतना सुंदर उन्होंने जो है मंच का संचालन किया, कविता पढ़ी, तो उनको हमें और मंच देने हैं और अवसर प्रदान करने हैं, ताकि अपने स्कूल के माध्यम से हम अपने इस विश्वविद्यालय को और मजबूत कर पाएँ। जहाँ तक आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रश्न उठता है, ये हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि इस पर खुले मन से चर्चा, एक फॉर्मल सेटअप नहीं होगा। जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब तक खुले दिल दिमाग से वार्तालाप नहीं होगा तो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रखेगा। क्योंकि NEP आया है, NEP में स्कूल से लेकर KG से लेकर PG तक की बात की है। जब तक उस लेवल पे इसको हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आगे इसका बढ़ना मुश्किल होगा। और चीज़ें नहीं आती हैं तो कुछ इनहिबिशंस भी होती हैं कि कैसे इसका कार्यान्वयन होगा, इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट है पेडागॉजी में भी और माइंडसेट में। तो उस पर मुझे लगता है आज पूरे दिन में आप लोगों को और उस पर मंथन करना चाहिए। और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन स्पीकर का होगा उतना ही आप लोगों का। उनको मैंने क्यों चूज़ किया, उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि विवेक मेरे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है। तो और क्योंकि मुझे इतना पता है कि शिक्षक में वो मादा होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कहीं तक भी पहुंचा पाता है। मुझे अपने अनुभव याद आ रहे हैं, जब मुझे पता लगा विवेक पहुंच गए हैं कैंपस में, मेरे 5-10 स्टूडेंट्स ऐसे थे MBA की मैं बात करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल गांव से आते थे। If you recall the boy Ratan Pandit, another boy, he was आज वो MTI गुड़गांव में है, बिल्कुल रॉ क्लास हर जगह जैसे रहती है। They were a little complex कि एक तो बिल्कुल वो गंजा था बच्चा। MBA में ये शुक्ला जैसे बच्चे भी आते थे बिल्कुल लाइव। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, वो बड़ा इंक्विजिटिव था। तो आई एनकरेज्ड हिम इन द क्लास। 4-5 की इंकरेजमेंट के बाद में 2 बच्चों के मेरे अनुभव मैं ये साझा करना चाहूँगी कि दे नेवर लुक बैक। Ratan is presently he did his PhD from NBI. Now he is a faculty in some one of the very good institutes in Mumbai. So was true with another person that he is teaching in NBI, faculty है वो, और अपने
अपने क्षेत्र के स्ट्रैटेजी में बेस्ट उसको अवार्ड मिले हैं हार्वर्ड से। वो बच्चा आता था, एक गांव है अपना रोहतक के पास से, फादर उनके आर्मी में थे, थोड़ा सा सपोर्ट लेट देम टू सच इन, तो टीचर की बहुत पावर होती। तो मैंने जैसे इस विश्वविद्यालय में एंटर किया तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इतने बढ़िया टीचर्स हैं, इतना पुराना हमारा इंस्टीट्यूशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, फाउंडर्स मैचलेस थे, उसके बावजूद भी वो ऊर्जा जो संस्था 75 साल लाइक KGSS 75 साल पुरानी है, वो ऊर्जा नहीं दिखी। जो ये आप इसको कहेंगे कि नया सेटअप आया, तो कहीं ना कहीं वो जो सिनर्जी डेवलप होनी थी वो नहीं डेवलप हो पाई। तो उन पे मंथन करना है, क्योंकि एग्जिबिटेड राइट सच एन वंडरफुल टीचर। मैंने इतनी सुंदर बहुत समय से हायर लेवल पे भी जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी पे नहीं, इतना सुंदर आप लोगों ने, तो प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है, उसको तराशने की कमी है। अपने सेल्फ बिलीफ और टीचर का जो बढ़ेगा, तो जो फायदा हमें विश्वविद्यालय बनने से होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी बन गया कि कंफर्ट जोन में आ गए। अब तो बढ़िया तनख्वाह है, दिया सरकारी, वी डोंट हैव टू कम ऑन सैटरडेज। तो जो उसका फायदा होना चाहिए था वो ना होकर थोड़ा उससे हमें नुकसान मुझे लगता है थोड़ा सा हुआ है, तो उस पर हमें काम करना है। तो मुझे लगता है जब हम इकट्ठे होकर बैठकर इस प्रकार से चर्चा करते हैं, वो करते हैं, तो जो हमारे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हमें सिनर्जी में बदलना चाहिए। और इस क्षेत्र की कोई भी जो हमारी स्टूडेंट है गांव की, वो किसी और प्राइवेट स्कूल में नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को एक दो और भी एडवांटेजेस हैं जो और स्कूल्स को नहीं होते। along with their own domain, they can have services of experts from departments also. So that synergy has to be developed. To me, you are the most important component of the university. आप लोगों को बातचीत करके कि हमारी कल्याण गुरुकुल की बच्चियों को इंजीनियरिंग में कैसे एक दिन का एक्सपोजर दिया जाए, क्या लैब्स होती हैं, FD में क्या क्या, तो ये बाकी स्कूल्स के बच्चों से ज़्यादा नॉलेजेबल होनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और हम सब मिलकर, हमारे बहुत सारे आई थिंक अराउंड 75 टीचर्स होंगे दोनों स्कूल्स के मिला के, आई थिंक यू कैन डू वंडर्स। और उसी दिशा में ये एक प्रयास रहेगा। विवेक इज हेयर, he is also on the test. See, so he has been conducting workshops throughout the country, और ये आपसे बातचीत करेंगे हर घंटे। एंड यू टू, since he is my student, I take the liberty स्पीकर के साथ साथ put him on test, and by virtue of by being my student, he can always be there to assist the schools in connecting with the people at national level. इन बच्चों को हमें मौका देना चाहिए। दिल्ली के हम नज़दीक हैं, विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि बच्चे को कहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाए। जितनी मेरी लिमिटेड इंटरेक्शन रही है दोनों स्कूल के विद्यार्थियों से, मुझे उनमें और इवन टीचर्स में बहुत प्रतिभा दिखती है, परंतु उसकी जो आउटकम है प्रतिभा के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, तो उसको मिलकर हमें ऊपर उठाना है। सरोज जी, शी हैज एन एक्सपोजर ऑफ कंट्री के अच्छे अच्छे स्कूल्स का एक्सपोजर है, और हमें ये मानना है कि हमें एक दूसरे से भी सीखना है। एवरी डे वी आर लर्निंग, एंड वो दैट लर्निंग स्पिरिट हमें एज टीचर्स अपने अंदर भी इन्वाइट करनी है और अपने विद्यार्थियों में उसको पास ऑन करना ही करना है। तो मुझे लगता है आई एम हैप्पी दैट यू ऑर्गेनाइज्ड इट, एंड आई एम श्योर जो ये दिन में डेलिब्रेशंस होंगी, आप अपने अनुभव साझा करें, आपस में मिलकर वर्कशॉप फॉर्म में जब इसको कंडक्ट करेंगे, इसकी आउटकम आपके दोनों कैंपसेस में देखने को मिलेगी। ये शुरुआत है। नीड बेस्ड वर्कशॉप in consultation with the NDP coordinator and all of us, I think we keep doing a lot of workshops.
but it has to be done with open mind. बिल्कुल जो है आराम से बैठ के अपनी जैसे टीचर का वो होता है उस प्रकार से आप इसे करेंगे। और मैं अपनी शुभकामनाएं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजकों को देना चाहूँगी और अपनी जो है आई एम रियली हैप्पी यू विल डू वेरी वेल एंड implement it both the schools and impact will be visible in terms of passing it on to the students. And presently our school Gandhar Gurukul is affiliated with Haryana government. Now we intend to affiliate it to CBSE because there are certain advantages. लोगों को लगता है पेरेंट्स को कि CBSE is a national board, so a broader exposure is there. So with this, I thank you all and wish you good luck. बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। मैं आशा करती हूँ कि आदरणीय कुलपति महोदया ने जो हमें टेस्ट दिया है उस टेस्ट में हम सभी साथी शिक्षक वृंद 100% खरे उतरेंगे। जिंदगी की राहों में मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपसा धीर वीर ज्ञानी नहीं मिलता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कुछ मौके होते हैं, कुछ खास पल होते हैं, उन खास लम्हों को यादगार बनाने के लिए और हमें अपने ज्ञान पुंज से प्रकाशित करने एक खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। उनके सम्मान में हम चंद पंक्तियां कहना चाहेंगे। लग्न निष्ठा और समर्पण की मिसाल हर समस्या का आप तोड़ है। लगन निष्ठा और समर्पण की मिसाल हर समस्या का आप तोड़ है। पद प्रति मान सम्मान से दूर नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। धैर्य धर्म धैर्य और सादगी है आपकी पहचान। धर्म धैर्य और सादगी है आपकी पहचान। मान्यवर विवेक शुक्ला जी, साकार करो नई शिक्षा का सोपान। साकार करो नई शिक्षा का सोपान। तो लीजिए आप आज के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने के लिए मैं NEP कोऑर्डिनेटर श्री विवेक शुक्ला जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान जी कृपया आप मंच पर आएं और हमें अपने ज्ञान से प्रकाशित करें।